Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today I received a call in that the candidate was confused whether he should apply for bank exams or not. He was confused because he is listening various views by various people for and against banking job. Now, what is the right approach? First thing is we have to be very clear what are the job options available to us. The moment you pass out, you complete your graduation, what is the best field where you should go? Obviously, your own field. If you are done engineering, you should get the job in your field. If you have done something else, you should get job in that. But the reality is otherwise. In India, job opportunities are very limited and this job market is shrinking very fast. Some people, they compare bank job with other jobs, but they forget the time taken for selection in some jobs is abnormally high. There are instances where exam has happened in 2018, still final result is not there. So the people who opted for that exam, vis-a-vis reference to banking, now they are repenting because their other colleagues have got the job and now they are eligible for another promotion after 2-3 years. So important thing is, can I choose the job in present scenario? Should I apply some criteria in picking the jobs or applying for the jobs? My own idea is, in the present market, you are not choosing the job. Employer is choosing the employees, not employees are choosing the employers. So unless you get job, your first effort should be to get a job. So you should apply in all available opportunities where jobs are being offered and where jobs are being offered in India. If these are offered in your own field, that is the best thing where you should go. But if jobs are not offered in your field, then banking and insurance, beside SSC, are other fields where jobs are offered. Even state governments are also offering the jobs. So now it is up to you to decide whether you want to become part of banking or insurance or government or state government or central government. But if you narrow down your options and you apply for only limited number of jobs, sometimes you may not get the job in the desired period and then thereafter your age passes off. So my own advice to each one of you is, concentrate on the areas where number of vacancies are large. Because if number of vacancies are large, the probability of selection of a candidate is also high. Say a candidate is applying where only 20 jobs are there and lakhs of people apply. Natural probability is very low. But say there are 5,000 vacancies, 10,000 vacancies, 8,000 vacancies, 4,000 vacancies, still probability is high. And such opportunity is normally given by the banks. So it is your choice. If somebody is thinking that somebody is chasing you to take the job, it is not the reality. In India, you are not deciding your employer. Employers are deciding who will be their employees. The moment we understand this reality, we will be at a peace of mind and we will be able to take right decision. The candidates are not choosers, but the employers are the choosers. But there are certain candidates, those are choosers also. Who are these? The candidates, those are able to crack more than one competition. The people, those are having more than one job offer. Then they can decide whether to go for this job or to go for another job or to go for third job. Unless you have
job offers in your hand and then comparing one job with another, I don't think it is a proper way of choosing or applying for a job. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। आज एक कैंडिडेट का फोन आया, उन्होंने बताया कि वो कंफ्यूज हैं कि बैंक जॉब के लिए अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि तरह तरह के चैनल उन्होंने सुने हैं और उसमें फॉर एंड अगेंस्ट बातें बताई जा रही हैं। अब मेरा यहाँ पर कहना ये है कि ये फैसला आपने खुद करना है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है आपके लिए? आपका अपना क्षेत्र। तो यदि आपने इंजीनियरिंग करी है और आपके स्ट्रीम में जॉब मिल रही है तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? पर यदि आपको अपने स्ट्रीम में जॉब नहीं मिल रही तो उस केस में आपको क्या देखना होगा? आपको देखना होगा कि जॉब कहाँ मिल रही है। इंडिया में जो जॉब मार्केट है वो डे बाय डे श्रिंक हो रही है, एक्सपैंड नहीं हो रही है। यदि हम रियलिस्टिक एनालिसिस करें तो आप देखेंगे हर साल जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो घटती जा रही हैं, जबकि एलिजिबल कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे के अंदर एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा या एम्प्लॉय डिसाइड करेगा, ये हमें सोचने वाली बात है। आज की जो स्थिति है इसमें एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि किसको उसको नौकरी पे रखना है, ना कि जो नौकरी की तलाश कर रहा है वो डिसाइड करता है कि मेरा एम्प्लॉयर कौन होगा। आज ऐसी स्थिति नहीं है जिसके अंदर कोई कैंडिडेट ये चूज कर सकता है कि मुझे ये नौकरी करनी है। पर फिर भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, इनको ये मौका मिलता है इस कंपटीशन में। वो कौन है? जिनके पास एक से अधिक जॉब ऑफर्स हैं। मान लो उन्होंने ए जगह अप्लाई किया, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया, बी जगह अप्लाई किया, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया, सी जगह अप्लाई किया, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। अब इनको डिसाइड करना है मुझे कहाँ जाना है। पर ऐसे लोग चुनिंदा हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं कि वो हर तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं मगर किसी में भी सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब जॉब मार्केट इतनी कठिन है और जॉब आसानी से नहीं मिल रही है तो आपको ये फैसला करना होगा कि जॉब कहाँ पर मिल रही है। मान लो एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें 20 वैकेंसीज हैं, 25 वैकेंसीज हैं, आप उसको अप्लाई करते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है सिलेक्ट होने की? नेग्लिजिबल। तो कहाँ पर प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की? जहाँ 4000 वैकेंसीज हैं, 5000 वैकेंसीज हैं, 6000 वैकेंसीज हैं, 10,000 वैकेंसीज हैं। तो नॉर्मली ये कहाँ पर निकलती है इतनी वैकेंसीज? ये बैंकिंग में आती हैं या इंश्योरेंस में आती हैं या एसएससी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, एसएससी की, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं। तो ये आपको चुनना है। आप किसी के कहने पे मत जाइए। अगर आप ये सोचें कि मैं आपको कहूँगा आप बैंक की नौकरी के लिए अप्लाई करो, वो ठीक नहीं होगा। आपका मन है बैंकिंग में आने का, आप बैंक की नौकरी ज्वाइन करें, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई बैंक वाला आपके घर पे आपको नौकरी देके जा रहा है। स्थिति यह है कि लाखों लोग अप्लाई करते हैं तो कुछ लोगों को वो अपॉइंटमेंट लेटर देता है, और जो अपॉइंटमेंट लेटर लेने के बाद भी ज्वाइन नहीं करना चाहता है उसको वो दोबारा बुलाने की चेष्टा नहीं करते, अगले आदमी को ऑफर देते हैं। तो एक जॉब के लिए लाइन लगी हुई है जिन्होंने ज्वाइन करना है। तो ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर कि कोई आदमी आज चूज कर पा रहा है कि मेरा एम्प्लॉयर कौन है। बहुत कम ऐसे लोग हैं देश के अंदर जो लकी हैं, जिनकी एक से ज़्यादा सिलेक्शन होती है या अनेक सिलेक्शन होती है, उनके पास ये चॉइस होती है। तो मेरी सलाह तो ये है कि आप पहले अपने आप को रियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पर लाइए। आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप अपना एम्प्लॉयर चूज कर रहे हैं। आपने ये देखना है कि मुझे जॉब कहाँ मिल सकती है। जैसे ही हम ये अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे तो हम व्यवहारिक बन जाएंगे। हमें ये देखना है कि अगर मैं अप्लाई करूं तो मुझे कहाँ पर नौकरी मिलेगी, मेरे अंदर कितनी क्षमता है कौन सा एग्ज़ाम पास करने की, मेरे को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करेगी। इस चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको अप्लाई करना चाहिए। और नॉर्मली मेरा क्राइटेरिया ये है बताने का कि जहाँ अधिक वैकेंसीज हैं उन जॉब पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए शुरू में। जब आपको एक जॉब मिल जाती है और आप एक जगह
अपने को ठीक महसूस करते हैं, फिर आप अपनी चॉइस की फील्ड के अंदर जाने की वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो जो आदमी अनएम्प्लॉयड है, मेरा मानना ये है सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। उस समय अगर वो एनालिसिस कर रहा है कि ए ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है कि बी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है कि सी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, ये सिर्फ वो अपना वक्त उन चीज़ों में लगा रहा है जहां उसको नहीं लगाना चाहिए। ये ऑप्शंस उन व्यक्तियों के पास होंगी जिनकी एक से अधिक जगह सिलेक्शन होगी। अप्लाई करते समय इस तरह की ऑप्शंस पे डिस्कशंस करना या अपना टाइम लगाना मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है। बाकी हर आदमी समझदार है, हर आदमी को अपना डिसीजन लेना है, पर एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में आने वाले समय में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अभी बढ़ने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, जिस तरह की परिस्थितियों से देश गुजर रहा है या जो इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही है। तो इसलिए जिस सेक्टर में हमें जॉब मिल रही है और आसानी से मिल रही है, हमें उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और उसमें अपने प्रयास करने चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।